ओम श्री परमात्मने नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। मोस्ट रेस्पेक्टेड स्वामिनी आत्मप्रज्ञानंद सरस्वती, one of the great scholar of our country, and I think the founder of Asya Vidya Vikas Kendra in Bhubaneswar. It was previously not there in Bhubaneswar, as I remember, but Madam and Swamini Atma Prajnananda Saraswati, she is the one of the best scholar in Vedic science, Veda and Vedantas. The secretary of this program, Dr. Vibhuti Bhushan Mahapatra, my friend, and dear delegates and especially students, I think research scholars are there. So my paper is just it is only for you only. Research scholars जो है उनके लिए मेरा पेपर है, और मैडम स्वामिनी साहब ये तो बड़े लोग हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं, मगर आपको शायद मेरा पेपर कुछ लाभ दे सकता है. So the title of the paper is Shakuntala, a notable woman in the history of India. So as our previous lecturer, that madam, she gave a very fantastic lecture on women empowerment. Okay. The same women empowerment is the goal of my paper, the main objective of my paper, where Shakuntala is the main character. Shakuntala, you all know that Abhijnan Shakuntalam, the Kalidasa's heroine Shakuntala is there. I thought to present a paper on Veda or Vedanta, but my friend Vibhuti Bhushanji told, you are a person of literature. Why should you go to Veda and Vedanta? Yeah, you may go, but one paper should come like it means aesthetics and comparative aesthetics, then some poetic value should be there. I thought, okay, no problem. So it is a long paper, but I think within 10 to 15 minutes, 10 minutes I can. Okay, thank you. So friends, Swayambhuva Manu, the spiritual son of Lord Brahma, has told in his Manusmriti, Yatra Naryastu Pujyante, Ramante Tatra Devataha, Yatra Etastu Napujyante, Sarpaha Tatra Afalaha Kriyaha. आपको तो इसका मीनिंग पता है, जहां हम लोग नारियों को पूजा नहीं करेंगे वहां सब क्रिया अफल हो जाएगा, कुछ भी फल सिद्धि नहीं होगा. तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी नारी को आप असम्मान नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपका जीवन निष्फल हो जाएगा. ये मनु वचन है, ये हमारा वचन है. इट मीन्स वेयर वुमेन आर ऑनर्ड, देयर द गॉड्स आर प्लीज्ड, वेयर दे आर नॉट ऑनर्ड, all works become fruitless. Vedanta and other Shastras tell that women have as much right to full development as men have. Women are the gift of the society, gift to the society. During ancient period in India, women played an important role. The Rigvedic women in India had given high status in the society. The Devi Suktam hymn of Rigveda declares the feminine energy as the essence of the universe, the one who creates all matter and consciousness. The Sukta says, Ahameva vataiva prabhamya bhamana bhuvanani visva parodeva paraena prithivyi tavati mahina sambhabhuva. Rigveda Devi Suktam Ashtama Mantra. In the same way, the woman is celebrated as the most powerful and the empowering force in some Upanishads and Shastras, particularly in the Devi Upanishad and Devi Bhagavad. The Mahabharata, one of the great epic of India, has enriched for certain impressible ideals of Indian womanhood. These ideas we find in the lives of Gandhari, Kunti, Draupadi, Shakuntala, Damayanti and Savitri. Shakuntala is one of the notable women in Indian Shastra. Shakuntala is the wife of great king Dushyanta. Dushyanta was the king of Hastinapura and the ancestor of the Kuru Empire.
Bharata is the son of Dushyanta and Shakuntala. His childhood's name was Sarpadamana. The country named Bharata is said to be derived from the name of Dushyanta's son Bharata. ये तो आपको पता है, हम आज हमारा देश भारत है क्योंकि दुष्यंत का जो बेटा था उसका नाम था सर्पदमन, फिर बाद में उसका नाम हुआ भरत, और भरत के नाम से हमारा देश का नाम भारत हुआ है। ये कई विद्वान बोलते हैं। ठीक, इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू से दैट Bharata is the son of Shakuntala. Yes, now we are coming to the topic. Bharata is the son of Dushyanta. भरत को अगर हमने दुष्यंत का बेटा कहेंगे तो ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा अगर हम कहेंगे ये शकुंतला का बेटा। हम पिता के नाम पे जाने जाते हैं, मगर भरत एक ही लड़का है जो माता के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि वो तो बचपन से बूढ़ा तक अपने पिताजी को नहीं देखा। और कभी एक बार दुष्यंत आया था इंद्र से युद्ध करके, फिर दिखा सर्वदमन खेल रहा है एक सिंह शिशु के साथ, और वहां थोड़ा पता चला कि ये मेरा पिता है। ठीक है, कालिदास उसको थोड़ा मोल्ड किया है और शकुंतला के साथ दुष्यंत को भेजे हैं अपनी डेस्टिनी को, अपने राज्य को, मगर शकुंतला और कहीं एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं, शकुंतला नहीं गई। मैं क्यों जाऊं, क्या है, आप तो मुझे जब पहचानना चाहिए था तब तो मुझे नहीं पहचाने, अभी मैं क्यों जाऊँ आपके साथ, मेरा तो बेटा हो गया है, मैं तो आश्रम में मरीचे के आश्रम में हूँ, ऋषि मरीच के आश्रम में, क्यों जाऊँ बेटा आपके साथ। तो देखिए कितना स्ट्रगल है शकुंतला की लाइफ। हमने ऐसे एक आर्ट एक काव्य के माध्यम से एक नाटक के तरफ पढ़े, वो अलग बात है, मगर जो वास्तविक जीवन है शकुंतला उसको हम we have to study it, we have to go to the depths of Shakuntala, how struggle. So Sarpadaman was taken care of by his mother Shakuntala in the hermitage of Rishi Maricha. The struggling life of Shakuntala is described in the Sanskrit play of Mahakavi Kalidas. Poet Kalidas narrated the story of Shakuntala told in the epic Mahabharata. Abhigyan Shakuntalam is regarded as the best poet, best of Kalidas's work. The birth of Shakuntala, Shakuntala के जन्म वृत्तांत आपको सबको पता है, फिर भी still then I just touch it. Shakuntala was born to sage Vishwamitra and heavenly Apsara Menaka. Karno was the adoptive father of Shakuntala. Once Vishwamitra started to meditate to earn the status of Brahmasri, the intensity of his penance frightened Indra. He feared that Vishwamitra might want his throne. To end his penance, Indra sent the Apsara Menaka to lower him and bring him out of his penance. Menaka reached Vishwamitra's meditating spot and started to shadow him. Vishwamitra could not control his desire and his penance was broken. Menaka was pregnant with Vishwamitra's sight and gave birth to Shakuntala. After some days, Vishwamitra realized that he needed to control his emotions. He left Menaka and started his penance once again. Menaka also left the infant near Rishi Karna's hermitage in the dense forest. Then she returned to the heaven. Rishi Karna found the infant near his hermitage surrounded by Shakunta birds. शकुंता एक पक्षी है, पक्षी के जो केव है जहाँ रहते हैं वहाँ वो शकुंतला को छोड़कर चली गई अपनी माँ मेनका। From that place, Kanwa received Shakuntala, and then the name of Shakuntala is called Shakuntala. उसी दिन से उसको, क्योंकि वो शकुंत बात के जो केव उससे ही निकाला, कण्व ने उनको कण्व को मिला तो उसका नाम उन्होंने शकुंतला ही दे दी। तो देखिए जिसका नाम का भी कुछ सम्मान नहीं है, और वो हमारे भारत का जो नामकरण है उसका मदर है, भरत का माँ है। तो हमने क्यों ऐसा सम्मान नहीं देते हैं, ये क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है, और उसी दिन से आज तक ये चलती ही आ रही है। हाँ ठीक है, अभी मैडम जो पेपर प्रेजेंटेशन किए थे वो 100% अगर लड़के वोमेन मैन जो पुरुष अगर शिक्षित है तो 62% महिला शिक्षित है। क्यों ऐसा, ये भेदभाव क्यों है? फ्रॉम द अर्ली स्टेज इट इज गोइंग
and we the young mass, we have to control it, we have to break this chain. So friends, in Abhigyana Shakuntalam, the heroine is having various characters. She is a daughter of Kadwa, the friend of Anasuya and Priyambada, the lover of King Dushyanta. Basically she is a nature lover. तो शकुंतला को आप लोगों के फ्रेंड, किसका स्वामी है, किसका बेटी है, किसका पिता माँ है, इसी के माध्यम से आप जितना नहीं जानेंगे उससे ज्यादा जानेंगे ये वो एक नेचर लवर है। वृक्ष, परिवेश, नदी, इसके ऊपर उसका ज्यादा अटैचमेंट है। तो कालिदास कहना चाहते हैं कि आप प्रकृति के साथ रहो जैसे शकुंतला रहे, और इसीलिए शकुंतला आज हम उसको सम्मान करते हैं। प्रकृति के साथ अगर हम नहीं रहेंगे, इसीलिए तो कालिदास अपना पहला ही मंगलाचरण उन्होंने किए हैं, या सृष्टि सष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर या चहोत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनु विरवतु वस्ताभिनष्टाभिनिशा। तो अच्छा, मैं पेपर तो हमने आप तो पढ़ेंगे, क्या होता है देखिए कालिदास क्या कहते हैं। वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल, इन सबको आप सम्मान दीजिए। क्या कालिदास एक वैज्ञानिक नहीं थे, एक साइंटिस्ट नहीं थे? अगर थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो साइंटिस्ट कितना घबरा जाते हैं। अभी अंटार्कटिका में आइस ब्रेक हो गया है, साइंटिस्ट सब मतलब क्यों ऐसे हुआ। एक दिन अगर सूरज नहीं आएगा तो हम बच पाएंगे क्या? एक दिन अगर चंद्र नहीं आएंगे तो हम बच पाएंगे क्या? एक दिन अगर तूफान जोर से हो जाए हम बच पाएंगे क्या? एक दिन अगर पानी पूरा जोर से आ जाए समुद्र का तो हमारा जीवन रहेगा क्या? तो साइंटिस्ट का चिंतन जो है कैसे इन सबको कंट्रोल किया जाए, वही चिंतन भगवान ऋषि कालिदास का है। कालिदास एक ऋषि है, कवयः क्रांतदर्शिनः। उनको केवल कवि के रूप में हम आज कहते हैं कि अमेरिका में साइंटिस्ट, साइंस का उद्भव अमेरिका, जापान ऐसे सब प्लेस में हुआ है, मगर साइंस का आरंभ हमारा देश में ही हुआ था। उसका बहुत सारा प्रमाण है। वेद, वेदांत, मैडम उसमें स्वामिनी हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ग्रेट स्कॉलर इन वेदांत वेदांत। तो आपने देखे होंगे उनका कितना सारा किताब है। जीवन भर हम एक छोटा सा किताब पढ़ लिखने के लिए हमको कितना मतलब परेशान हो जाते हैं। बट मैं कल रात उस किताब में पढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर रहा था, इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन। ओके, देन द ब्यूटी ऑफ शकुंतला। शकुंतला का जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, उसके ऊपर भी हमको थोड़ा चिंतन करना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट दे देता हूँ। In the first canto, when Dushyanta saw the blissful beauty of Shakuntala, he was astonished. He told, Sarasijamanubidham shaivalena piramyam malinamapi himamsoho lakshmalakshmim tanamati yamadhikamanogya sapalkalena pitanni kimivahi madhuranam mandanam nakrutinam। अभिज्ञान शाकुंतल 1.20 प्रथम अंकस्य 20 श्लोकः। किमिवाहि मधुराणं मंडनं नाकृतीनां। भगवान यस्य सविधे साक्षात् रूपस्य लावण्यं ददाति तस्य पुनः मंडनस्य का आवश्यकता वर्तते। या शकुंतला स्वयं भगवता सृष्टि वर्तते, तस्याः शकुंतलायाः कृते पुनः मंडनं, पुनः अलंकाराः तत्र ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादयवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युः अचलस्थितयो गुणाः ते भवन्ति गुणाः। गुण अलंकाराणां मण्डनं किं वा अपेक्षितं वर्तते, का वा आवश्यकता वर्तते शकुन्तलायाः कृते? यतः सा स्वयं भगवतः अपरूपा कन्या वर्तते, तस्याः माता भवति अप्सरा, अप्सरसः कन्या। अतः कालिदासः कथयति, कितना सुंदर। और दुष्यंत बोल रहे हैं कि इसको कैसे गठन किया गया। इसको गठन करने के लिए भगवान ब्रह्मा को कितना चिंतन करना होगा, किया होगा भगवान ब्रह्मा ने।
किमिव हि मधुराणं मंडनं नाकुतेनम चित्ते निवस्य परिकल्पित सर्वयोग्यान रूपोच्चयेन विधिना विहिता कृशांगी स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे धातुर विभुत्वम अनुचित्य वपुष्टतस्याः। एक अपरा सृष्टि है, ऐसा सृष्टि संसार में अभी तक नहीं हुई है। तो दुष्यंत जो गुरुकुल के राजा और जो रमणियों के साथ रहते हैं, वो एक ऋषि के पुत्री को देखकर, जिसके शरीर में कुछ रूपलावण्य इतना है, अपना रूपलावण्य है, जिसमें अलंकार और जो हमने उसको कॉस्मेटिक कहते हैं ना, वो कॉस्मेटिक कोई कुछ नहीं चाहिए शकुंतला। इसीलिए वो कहते हैं जो अपना जो खुद ही सुंदर है उसको फिर सुंदर बनाने के लिए कॉस्मेटिक यूज करने का क्या जरूरी है। तो ये है कालिदास का भाव। अनाघातम पुष्पम और कैरेक्टर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। तो शकुंतला के जो सौंदर्य को वर्णन करते हुए कालिदास ने उसमें व्यंग्य रखे हैं कि आप अपना कैरेक्टर को ठीक रखें। चरित्रमेव खलु खलु मुख्यम। तो उसमें इस श्लोक में पूरा उन्होंने, अगर डायरेक्ट वो कहेंगे आप अपना कैरेक्टर को, क्योंकि कालिदास एक व्यंजनावादी कवि थे, एक व्यंग्य उनके साथ वो सब हर श्लोक में हर पद में उनका व्यंग्य है। तो उसमें वो लिखे अनाघातम पुष्पम किशलयम अलूनम कररुहै अनाम मुक्तम रत्नम मधुनवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रुपमनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति भुवि। अनाघातम पुष्पम, इस श्लोक को आपने पढ़िए, इसको आपने पढ़िए, आप अपना जीवन को एक श्रृंखलित जीवन बिल्कुल कर सकते हैं। She seems a flower whose fragrance none has smelled, a loving bird not plucked by nails, a gem not yet perforated, fresh honey with flavor not yet tasted, the fruit of praiseworthy performance not yet broken up. No man on earth deserves to taste her beauty, her blameless and loveliness. This is the character. Specifically, our sisters, our mothers. To them, Kalidas indicated this is so. Shakuntala as a lover. Nowadays, love become fashion. But Shakuntala, love is a set of emotion and behaviors of two hearts. She knows that. It involves care, closeness, attraction, affection and trust. It is associated with a range of positive emotions. All these aspects of love were with Shakuntala. She loved Dushyanta like her God. Dushyanta himself felt the love of Shakuntala and described his friend Vidusaka many times. दुष्यंत ने कहते हैं कि उसका जो प्रेम वो कैसे है, नैसर्गिक प्रेम है, वो आजकल का जो फैशन नहीं। अभिमुखे मयि संवृत मिखितम हसीत मन्य निमित कथोदयम विनय बारित वृत्ति अतः तस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। When Vidusaka asked to Dushyanta, how does Shakuntala feel towards you when you met her first time? That time Dushyanta told, my friend, she is dependent on her father, and her father was not in the ashram at that time. So when I was near, she could not look at me. She smiled, but not to me, and half denied it. She would not show her love for modesty, yet did not try so very hard to hide it. तो प्रेम है मगर उसको इतना एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं कर पाती थी शकुंतला। Then here Dushyanta wants to tell that hermit girls are very nature timid. So Dushyanta was able to show her respect only though she had affection towards Dushyanta. उसको जो अपना शकुंतला का जो प्रेम
उसको मैं ज्यादा और आपके सामने नहीं रखता हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं, मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया। और शकुंतला दुष्यंत को एक लेटर, एक चिट्ठी लिखती है तृतीय अंक में। वो कैसे लिख रहे हैं उसको? शकुंतला लिखती तब न जाने हृदयम मम पुनर्मदनो दिवातिरात्रमपि निष्कृपतापयति बलीयसि बलीयस्तव हस्तमनोरथानि अंगानि। मेरा मन में जो भाव है आपके मन में है या नहीं मुझे पता नहीं, मगर मेरा अंग तो दिन और रात आपके तरह ही जा रही है, मेरा मन जा रहा है, यही चिंतन है। आई नो नॉट इफ आई रीड योर हार्ट राइट, why pitiless do you distress me so? I only know that longing day and night to raise my restless body to and fro, that yearness for you, the source of all its woe. एवं शकुंतलायाः चिंतनम तदर्थम दुष्यन्तः पुनः वदति क्षाम क्षाम कपलमाननमूरः काठिन्यमुक्तस्तनम् मध्याक्लान्ततरः प्रकाम विनतापं सौछभिः पाण्डुरा स्वच्या च प्रियदर्शना च मदनग्लानेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। तो दुष्यंत ने शकुंतला को पूरा अपने अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ेंगे तो उसमें एक जजमेंट है। दुष्यंत ने शकुंतला को पूरा जज करते, अरे ये कैसा है, कैसा, क्योंकि ऐसा व्यवहार साधारण लड़की के पास नहीं रहे जो शकुंतला के पास है। और इसीलिए तो अगर ये सब आपके पास रहेगा तो जीवन भर चाहे पृथ्वी अंत हो जाए, फिर नया सृष्टि का सर्जना जब होगा तब उसी लड़की को फिर याद किया जाएगा जो लड़की समाज के लिए कुछ किया है। और वही हुआ शकुंतला के पास। Something was there with Shakuntala, that hidden power. That's why Kalidas wrote it in 1st century, and now 21st century, 21 years, 2100 साल बीत गया है। कालिदास का नाम भी वो कालिदास था या उसका नाम और कुछ था? वो कैसे एक विद्वान थे जिनका नाम, जिनका अता पता कुछ नहीं है, फिर भी उनको हम याद रखे हैं। यही है कालिदास का वैभव। और उनका जो हीरोइन है शकुंतला, इतना उन्होंने दे दिए हैं उसके पास पावर, हिडन ट्रेजर जो हम कहते हैं। इसीलिए शकुंतला को आज सारा विश्व याद कर रहा है। आप जाओ लंदन यूनिवर्सिटी, आप जाओ कहीं विदेश में, मैं 1-2 यूनिवर्सिटी गया हूं, उसमें शकुंतला को पूरा सम्मान के साथ पढ़ाया जाता है। हमारा भारत से ज्यादा सम्मान वहां दिया जाता है। आई फील इट। शकुंतला आज नेचर लवर, ये मैं उसको थोड़ा सा करके 2-4 मिनट में मैं बंद कर लूंगा। इन अभिज्ञान शाकुंतलम, नेचर प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले। द प्ले इटसेल्फ इज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। Shakuntala was living in a dark forest where trees, forest animals and birds were the friends of Shakuntala. Even after marriage, when Shakuntala reached Dushyanta's court, Dushyanta had lost his memory due to Durvasa's cause. Unfortunately, he didn't recall anything at all about Shakuntala and their wedding. Hence he refused to accept Shakuntala as his wife. Shakuntala tried to remind him of their meeting, but Dushyanta didn't remember anything. And then Shakuntala went to the hermitage of Maricha. So यहाँ भी कन्नों के आश्रम में थे, वो थी शकुंतला, और वहां दुष्यंत के घर से भी वो चली गई हर्मिटेज ऑफ मारीच ऋषि, वो भी आश्रम है। तो जीवन का आरंभ से जीवन का अंत तक शकुंतला रही पूरा फॉरेस्ट में। उसको कहा गया कि आप पुरोहित के घर पे रहो, और जब आपका बेटा पैदा हो जाए तब जो ज्योतिष ने, दैवज्ञ ने बोले थे कि चक्रवर्ती लक्षण युक्त एक बेटा होगा दुष्यंत का, अगर ऐसा हो गया बेटा तो इट इज कंफर्म दैट यू आर द वाइफ ऑफ दुष्यंत।
तो वो भी वेट कर सकती थी थोड़ा, पुरोहित के घर 2-4 महीने, बेटा होने के बाद फिर चक्रवर्ती लक्षण संपन्न बेटा तो दुष्यंत का ही होगा, ये दैवज्ञ का विचार था, ज्योतिषियों ने बताए थे, तो कंफर्म हो जाता। अगर उसका अफेक्शन इस राजमहल के साथ होता तो वहां 2-4 महीने रह जाते आराम से। दुष्यंत ने तो वही बताया कि आपने रहो, अगर आपने मेरा वाइफ बता रहे हैं तो रहो, अगर बेटा ऐसे हो जाए तो हो गया। मेरा तो याद नहीं आ रहा है, मगर ये तो एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे दैवज्ञ ने बताया कि आप मेरा बेटा चक्रवर्ती लक्षण संपन्न का बेटा होगा, तो आपका अगर ऐसा बेटा हो जाए तो आप मेरा पत्नी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर वो जो अफेक्शन, मैं राजमहल में रहूंगी, रानी बनकर रहूंगी, ये लोग शकुंतला के पास नहीं थे। मुझे वही आश्रम चाहिए, मुझे वही पेड़ चाहिए, वही झरना चाहिए, वही मृग हरि हिरण, उनके साथ मेरा रहना है। तो फिर वो चली गई अप्सरा तीर्थ और एक सुंदर आश्रम में उन्होंने अपना घर बना लिया। तदेव कथयति आरंभे हला शकुंतले नाम in the first canto when she is entering Shakuntala to the platform, Anasuya is telling Hala Shakuntale तत्तोपि तात कण्वस्य आश्रम वृक्षः प्रियतरा इति तर्कयामि येन नवमालिका कुसुम परिपेलवापि त्वम् एतसाम् आलबाल परिपूर्ण नियुक्ता। Anasuya told dear Shakuntala, Father Kanva cares more for the hermitage trees than he does for you. You are delicate as a Navamalika flower, yet he tells you to feel the trenches about the trees. Hearing it from one of her best friends, Shakuntala replied, वो बता रहे, अनुसुईया बोल रहे हैं कि आपसे वो वृक्ष तात कण्व का बहुत प्रिय है, और शकुंतला बोल रही है नहीं नहीं ऐसा नहीं, not merely the paternal direction alone, there is also my sisterly affection towards the tree. अरे मैं तो उनका बहन हूँ, ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब मेरे भाई है और मैं उनका बहन हूँ। आप बता सकते हैं किसी पेड़ को लेकर ये मेरा बहन है या ये मेरा भाई है? यही है पॉइंट। कालिदास को विश्वकवि माना गया क्यों? पेड़ को भी मनुष्य के साथ वो भाई बहन कर देते और हम उसको काट देते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कालिदास एंड मॉडर्न कालिदास। उन्होंने जोड़ते हैं, हमने तोड़ते हैं, यही है। अच्छा, जब का शकुंतला जब जाती है शादी करने के लिए तो पेड़, ये लास्ट है, उसके बाद मैं और आगे नहीं जाऊंगा, क्लोज कर दूंगा। जब जाती है तो पेड़ सब देते हैं ऑर्नामेंट्स। कैसे? क्षौमं केनचित् अपाण्डु तरुणा मांगल्यमाभिस्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभवशुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतले भोगोत्थितै भागोत्थितै दत्तान्याभरणानि तत्किशलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। आभरणानि सर्वाणि अपि दत्तानि वृक्षैः, सर्वेपि वृक्षाः आभरणानि ददति। तर्हि कश्चन वृक्षः ददाति लाक्षारसम्, अपरः कश्चन सः ददाति मालां, कश्चन पुष्पाणि ददाति, कश्चन तत्र लतां ददाति। तर्हि वृक्षः अलङ्काराणि दत्त्वा शकुन्तलायाः मण्डनं कुर्वन्ति। अस्य कथनस्य कः अभिप्रायः? एवरी ट्री, कोई भी आप पेड़ देखो उसके पास कुछ क्वालिटी है और उस क्वालिटी को हमने पहचानना चाहिए, उसको ऐसा सम्मान देना चाहिए। ये कहने का क्या अभिप्राय है? क्या क्यों पेड़ आकर का शकुंतला को दे रहे हैं कि तुम ये लो ये लो ये लो? नहीं, कहने का अभिप्राय है जिस पेड़ के पास जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को हमने पकड़ना चाहिए और उसको हमने सम्मान देना चाहिए।
इसीलिए तो कालिदास ने कहते हैं पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायताम् सर्वैः नाम एते वृक्षाः ये सन्ति तेषां वृक्षाणाम् अनुज्ञा अपेक्षते। तो वृक्षों के पास उन्होंने मनुष्य का भावना रखे हैं कि आप अगर अनुज्ञा देंगे, आपका अगर अनुमति होगा तो शकुंतला जा सकती है पति की। तो देखिए मनुष्य वृक्ष के अंदर कोई भेद नहीं था। अगर सार कहेंगे तो मैं जाऊं, ठीक है, अगर पेड़ कहेगा तो मैं जाऊं, ये चिंतन कहा कि कौन कभी लिखा है? ऐसा तो कभी कोई नहीं है संसार में। तो कवियों कहते हैं रे वृक्षवासी, रे वन देवता, आप अगर आशीर्वाद दे तो शकुंतला अपना सासू अपना दुष्यंत के पास चला जाए। तो फिर उन्होंने आशीर्वाद भी देते हैं रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमे नियमितार्क मयूरतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरम्याः शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पन्थाः शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पन्थाः। There is Akasavani. Anantaram sarve vrukshah militva, all the trees, they are telling Shakuntala, they are blessing the Shakuntala, they are better Shakuntala, they are telling that Santanukula pavanascha sivascha pantha, sivascha pantha. You stay blessed, stay happy, sivascha pantha. भवत्याः मार्गः सुन्दरः भवतु, भवत्याः जीवनं सुन्दरं भवतु, भवत्याः जीवनं मङ्गलमयं भवतु, भवति समग्र संसारे भवत्याः एकं विशिष्टं स्थानं भवतु इति वृक्षाणाम् आशीर्वादेन अद्य शकुन्तला 21 संवत्सरपर्यन्तं शकुन्तला अस्माकं सर्वेषां जीवने अस्ति, अस्माकं हृदि वर्तते। अयम् आशीर्वादः केषां सकाशात्? कैः दत्तः वर्तते? वृक्षैः। वृक्ष सर्वेपि वृक्ष सर्वैः वृक्षराजिभिः प्रदत्तः अयम् आशीर्वादः। So this is the life history of शकुंतला। This is very short point, सब पॉइंट करके हमने दिए और उसके ऊपर ज़्यादा भी विचार कर सकते हैं। हमारा मार्गदर्शिका मैडम आत्मप्रज्ञानंद सरस्वती स्वामिनी हमको फिर आगे मार्गदर्शन करेंगी। मैं तो उनकी 2-3 भी सुना हूँ यूट्यूब में, तत्वमसी और एक पॉट उन्होंने एक यूट्यूब में आपने भी थोड़ा देखिए, एक मिट्टी का पॉट एक है पत्र, उसमें यूट्यूब में उन्होंने आई सॉ इट्स वेरी नाइस, उसको आप थोड़ा देखिए, वो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है उसमें, मतलब बता रहे हैं जीवन क्या है। अपने डिसाइपल्स बच्चों को पढ़ा रहे थे कि मिट्टी का पात्र रखे हुए हैं, उसका मतलब आप उसको आप सुनिए, मैं आपको थोड़ा दे दिया, मतलब हिंट्स दे दिया, आप पढ़िए फिर आपको पता लगेगा। दिस इज क्ले, वेयर इज द पॉट? यस वो आपने यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। और आप सबको मैं तो बहुत थोड़ा सा, इतना मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं सबसे मैं कम उम्र का हूँ, मतलब मेरे जो विद्वान है सब, तो ठीक है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।